The ninth round of talks on the 44th day of the farmers' agitation was held amidst hostility. The talks ended with no breakthrough. Is the trust deficit now too wide between the government and the farmers to bridge? Have the talks now hit a dead end? The government has said to the farmers, go to the Supreme Court. The farmers say no. Now what? That's the top focus on To The Point this evening. So what's going to happen now? Because the government has made it very clear that we are not repealing the laws. Viewers, in the ninth round of talks today, for the first time, the government made it amply clear in the statement where the Agriculture Minister himself said, we are not taking back the laws. They gave two options to the farmers. Farmers have rejected both outrightly. What are those options that were given to the farmers today? Take a look. Day 44 of the farmers' agitation and round 9 of the talks hit a dead end today. While the next date is January 15th for talks, there is little hope of a breakthrough. सरकार अभी मान नहीं रही, सरकार अभी मान नहीं रही और ना किसान मान रहा। एमएसपी पे वहाँ पे कोई चर्चा नहीं हुई, वहाँ पे चर्चा हुई है बिलों पे वे संशोधन की बात करना चाहते हैं, हम बिल वापसी की बात करना चाहते हैं। The government has given two proposals. Number one, to form an informal group with members from the both sides. 2. Day-to-day hearing in Supreme Court. If the Supreme Court deems the law as illegal, then the government will repeal laws. Both the options have been rejected by the farmers. सरकार ने कहा भी 11 तारीख को कोर्ट में है, पता नहीं कोर्ट में क्या है, हम नहीं कोर्ट के बीच में गए। कौन गया कोर्ट में, उसका काम होगा, हमारा कोर्ट का काम नहीं है। हमारी तो लोगों की चुनी हुई सरकार है, इसी से हम जो फैसला करेंगे इसी से करवाएं। The ninth round of talks that lasted just a little over 3 hours hit a stalemate right at the beginning. The farmers pushing the government to make their intent clear on repealing laws. The government digging in its heels over the laws. वार्ता में तीनों कानूनों से संबंधित ही चर्चा होती रही, लेकिन कोई निर्णय आज नहीं हो सका। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी। The intent of the farmers was made clear in the meeting itself. One of the farm leaders sat with a placard which read, "Ya to marenge ya jeetenge. Either we will win or die." Now the big question is, what now? Because the farmers are refusing to take the apex court route. Bureau Report, India Today. So the big question is, what really is going to happen right now? Before we cut across to our panelists, I want to go to Rahul Srivastava, National Affairs Editor, to get a larger picture. He was there covering the ninth round of talks on day 44. Rahul, it's a complete breakdown. That is quite evident. The trust deficit now way too wide to bridge. Question, Rahul, is what happens now? Because the farmers have rejected. They don't want to go to the Supreme Court. They don't want to form a committee with both groups. Now what? Preeti, I will say that with the ninth round, the positions have hardened. Actually, the situation seems to have worsened. Why? Because farmers have gone too far demanding the repealing. And you read out that slogan. That perhaps is the underline of what the farmers want. And they are not ready to go back on the demands. In the morning, they had gone inside the meeting telling us very clearly that any middle path will be a climb down. And they cannot go back to the farmers with a climb down. And under that kind of scenario or under that kind of pressure that even the farm unions are facing,
For them to negotiate a middle path with the government is absolutely impossible. And realizing that the farmers are not relenting and the government does not want to relent, the government came up with two proposals. One was to set up an informal group representative of both the sides, and the findings or the suggestions will not be binding, but perhaps that's a way to explore. The second was, let's go to the courts. If the courts say that the laws are illegal, the courts, the government will push the bills out, the laws out, and if they are held valid, then of course the bills will remain, the farmers will have to end the protest. Now the farmers realize that a legal protracted battle will take too long. And that's what the government eventually wants. And that's why the farmers are not very ready for it. The government even suggested that we can recommend or suggest to the courts, let's have a day-to-day hearing. The farmers are not ready for that also. Because somewhere the distrust level has gone so high between the government and the farm unions that there is no chance of a climb down. And that is why what one can certainly say now, that even on the 15th of January meeting, not much can be happening or can happen if both sides remain entrenched as far as coming down to a point of convergence concerned. So what's the way out? Eventually it seems that the courts will have to step in because both the sides are not relenting. The government assessment is across the country there is no large-scale protest or disgruntlement against the laws that the government has created. And given that assessment, what it's trying to do is buy time, tire the protesters out and try to ensure that it is not that the government climbs down, but it is the courts which adjudicate on the laws. Rahul, before I let you go, so what happens now? If the court is going to be forced to step in, this is going to prolong. It's already day 44. We are looking at the long haul because they are not budging from the borders. They're threatening the farmers en masse, threatening to come in on the 26th of January. Yes, Preeti, the situation can get precarious if the farmers keep their plan intact of entering Delhi on January 26th. But that's where the government is hoping that somewhere if the talks break down, they do not produce a result, and the Supreme Court steps in, if still the farmers continue their protest or breach that line that they have drawn that they will not escalate their protests, then the consequences will be on the farmers in a situation where there is no large-scale nationwide support for their protests. The government assessment is that it will be the farmers' union and farmers who will get discredited, and largely these farmers, they say, are from Punjab and Haryana. I think it's a brinkmanship game going on in which there is a mooch ki ladai happening. The government does not want to blink first, nor do the farmers. In that, one can say is that one of them will have to blink, or eventually the Supreme Court will have to adjudicate on a very, very ticklish issue. All right, appreciate it. Continue to come back to you. I want to cut across to our panelists this evening. I have with me Gopal Agrawal, Bharatiya Janata Party spokesperson, Vijay Javandia, founder member, Shetkari Sangathan, Tejveer Singh, farm leader. Tejveer Singh is joining us from the Singhu border and I'll go to him immediately. Tejveer Singh ji, अब क्या होगा? क्या आप कोर्ट जाएंगे? आपने दोनों जो सारी फार्म यूनियंस थी उन्होंने जो दोनों ऑप्शन दिए थे सरकार ने वो आपने रिजेक्ट कर दिए हैं, तो अब आप क्या चाहते हैं, क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट आप जाना नहीं चाहते? नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। सबसे पहले तो आपको नमस्कार कि आपने हमारे लिए समय निकाला, और लगातार ही आप देख रहे हो कि सरकार के साथ कितनी बार वार्ता हो चुकी है। लगभग अगर टोटल लगाया जाए तो 100 घंटे से ऊपर की वार्ता हो चुकी है। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के अंदर जो लोकतंत्र की हत्या मानते हैं उन 4 मौतों के ऊपर ट्वीट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर पिछले 44 दिन से लगातार आंदोलन चल रहा है, उसके ऊपर तकरीबन 60 के करीब मौतें हो चुकी हैं। बीजेपी के एक भी लीडर का एक भी सहानुभूति का बयान तक नहीं आता कि मेरे देश के किसान यहाँ बॉर्डर पर मेरे साथ बात करने के लिए आए हैं लाखों के, आप बात क्यों नहीं सुनते? आप अपना जो राजहट है ये अपनी प्रतिष्ठा का नासवाल बनाते हुए जो अभी 1-2 बातें रख रहे हैं कि स्टेट को दे देते हैं। स्टेट से अधिकार छीना किसने था? आपके चुनावी मैनिफेस्टो में नहीं था कि हम फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म करके सब कुछ सेंटर के अधीन करेंगे। उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। जब रबाड़ी के अंदर आंसू गैस के गोले गिराए गए, सुप्रीम कोर्ट की ही गाइडलाइन के अनुसार था कि इन किसानों को आने दिया जाए। ये पीसफुली तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप इन्हें रोक नहीं सकते। बीजेपी की गवर्नमेंट है और वही आंसू गैस चलाती है। क्या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात को माना?
कि आप तो हम कैसे बात ये समझ लेते हैं, जब इन्होंने बनाया 15 पॉइंट पर ये बोलते हैं कि हम सहमत हैं अमेंडमेंट कर लेंगे, तो रद्द करने में क्या हर्ज है? लोगों की सहानुभूति को आप समझो, लोगों की संवेदनाओं को आप समझो, लोगों की भावनाओं को आप समझो कि वो किस भावना से आए हैं। वो अपना अधिकार और हक लेने के लिए आए हैं और मांग क्या रहे हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बस न्यूनतम तो मांग रहे हैं, मैक्सिमम तो नहीं मांग रहे हम। आपको इनकी भी बात सुननी चाहिए ना मोदी जी, हम यही बात रखने आए हैं। और जितने भी लोग आप ये बात काफी टाइम से कह रहे हैं, देश से आंदोलन खड़ा हुआ है। जी तेजवीर सिंह जी, आप ये बात काफी टाइम से कह रहे हैं, पर आज पहली बार नवी बार में जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने साफ आके कह दिया है कि देखिए हम ये लॉ वापस नहीं ले रहे हैं, आपको जाना है आप कोर्ट पे जाइए, कोर्ट मना करता है तो हम ले लेंगे। पर अगर अभी कोर्ट ने मना कर दिया है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया है, तो अब किसान क्या करेंगे? क्योंकि सरकार कह रही है तेजवीर जी, ये पूरे भारत का मामला तो है नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे किसान पूरी कंट्री के साथ इकट्ठे हो गए हैं, ये 2-3 स्टेट हैं जो एजिटेट कर रहे हैं। मैम ये आपकी नीति के अनुसार है। मैं आपको यहाँ तमिलनाडु से बुला देता हूँ, आपको यहाँ से उत्तराखंड से, यूपी से, राजस्थान से, बिहार से, मिजोरम, त्रिपुरा में, बिहार में एजिटेशन हुआ, तमिलनाडु में क्या हुआ है वो आपने अच्छी तरीके से मीडिया में देखा है। केरल से यहाँ लोग आए हुए हैं, कर्नाटक से यहाँ लोग आए हुए हैं। आप कैसे बात करते हैं? MSP तो सभी का अधिकार है ना। तेजवीर सिंह, ये मैं नहीं कह रही हूँ, सरकार कह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करती है। क्या वो मांगना अधिकार नहीं है? आप ये बात बताइए। दूसरी बात आप ये बताते हैं कि अगर ये इस हट पर अड़े हुए हैं कि नहीं होंगे, तो 15 तारीख की वार्ता फिर इन्होंने दोबारा रख दिया। तो हमारी कॉल्स हैं, 18 तारीख को हम किसान महिला दिवस बनाएंगे, और 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस जी का, और 25 तारीख को, 26 तारीख को हम परेड में शामिल होंगे। ये हमारा एक एजिटेशन आंदोलन करने का एक तरीका है। पर आप हमने कोर्ट दे चुके हैं हम इस बात की। तो सिंह साहब, आप अभी कोर्ट नहीं जाएंगे, ये तय है? ये तय है, बिल्कुल तय, हम जाएंगे नहीं। और ये क्या करते हैं, जो किसानों को बैठा रहे हैं ना, अब इन्होंने एक बाबा को बुला लिया है, बाबा तो यहाँ कार सेवा कर रहे हैं, उनसे भी आप पूछो ना, उनका क्या लेना देना है? ये झूठे किसानों को, उन किसानों का आप जो किसान संगठन ये बुलाते हैं, उनका बैकग्राउंड चेक कीजिए। वो खुद बीजेपी के हैं, वो खुद भी बीजेपी के लिए प्रचार करते रहे हैं, वो किसान संगठन है, वो बीजेपी के सेल के बनाए हुए हैं, ये सब लोग जानते हैं। दूसरी बात ये कहते हैं स्टेट को आप हम अधिकार दे देते हैं। स्टेट को अधिकार देना था, स्टेट का राइट छीना किसने था? जब एग्रीकल्चर आता ही स्टेट के अंडर था, तो आप पानी का अधिकार भी दे दिए, जो पंजाब का मसला है बड़ा। आप स्टेट को, आपने कब बोला था अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कि हम फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़कर ही नया सेंट्रलाइज करेंगे? इसको सीधा सीधा कॉर्पोरेट्स के लिए काम कर रहे हैं। इनके लिए, बड़ी मोदी सरकार के लिए ये कठिन हो गया है, क्योंकि अगर ये आगे बढ़ते हैं, रद्द ये करना चाहते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट ने इनका गला दबा रखा है। सरकार कॉर्पोरेट्स के लिए, बंधुआ मजदूर के लिए काम कर रही है। टोटल एयरपोर्ट देख लो आप, वो प्राइवेट को दे दिया, रेलवे प्राइवेट को दे दी, यहाँ तक कि लाल किला प्राइवेट को दे दिया। जी चलिए, आप सब कुछ देख सकते हैं देश में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तेजवीर सिंह जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो भी जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास जाना चाहूंगी। अग्रवाल जी, अब पहली बार सरकार ने आज मीटिंग में बोला है, पहले नहीं बोला था, साफ बोल दिया है कि ये लॉज हैं, ये रहेंगे, ये वापस नहीं जाएंगे। तो फिर अब 15 जनवरी को क्यों मीटिंग हो? क्योंकि किसानों ने तो साफ कह दिया है, यहाँ पे तेजवीर साहब कह रहे हैं कि भाई ना हम कोर्ट जाएंगे, और हम बिल्कुल तय है कि ये 3 काले कानून वापस लें, जो तेजवीर साहब कह रहे हैं। तो अब 15 जनवरी को क्यों है मीटिंग, क्या होगा उसमें? देखिए, पहली बात तो हम ये नहीं मानते कि ये तीनों कानून काले कानून हैं। सरकार ये तीनों कानून लेके आई है व्यापक चर्चा के बाद, किसानों के संगठनों के रिकमेंडेशन के बेस पे ये लाई है, और ये इससे किसानों का हित होने वाला, यह हम पक्की मजबूती से और अच्छी तरह से पूरे ध्यान से ये बात मानते हैं। दूसरी बात यह है कि हम ये भी नहीं मानते कि जो प्राइवेटाइजेशन है वह खराब है हर चीज में। मतलब ये सारे देश में कितना पावर सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, IT सेक्टर, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ही फ्लोरिश कर रहा है, और उसी के कारण पूरा देश प्रगति के रास्ते पे आगे जा रहा है। तो केवल एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर चोर उचक्कों का भरमार हो जाएगा, यह बात हम प्रिंसिपली मानने को तैयार नहीं है। तीसरी बात यह है कि हम मानते हैं कि किसानों के केवल अकेले पंजाब और हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के ज्यादा किसान हैं, क्योंकि MSP में धान और गेहूं
का फसल ये उपजाते हैं और उसमें एमएसपी का इन्होंने ज्यादा फायदा मिलता है। बाकी प्रदेश के जो किसान हैं उन लोगों की बहुत सारी समस्याएं, उनका भी समाधान इस कानून में होगा। तो जब इतनी बात हम पूर्ण विश्वास के साथ, कमिटमेंट के साथ कह रहे हैं, किसानों के चर्चा के बाद कह रहे हैं, और सारे संगठनों ने लिखित रूप में दिया हुआ, शेतकरी संगठन है, ये कह रहे हैं छोटे छोटे संगठनों को बुला ले आ रहा। जो शेतकरी संगठन है, जो भारत का सबसे बड़ा संगठन है, उसके शरद जोशी जी जो फाउंडर है, उन्होंने तो कई बार कहा, और अभी भी वो यही कह रहे हैं कि यह किसान कानून जो है। गोपाल अग्रवाल जी, बहुत बढ़िया बात की आपने, क्योंकि शेतकरी संगठन से हमारे साथ उनके फाउंडर मेंबर हैं विजय जेवांदिया, मैं उनसे जुड़ जाती हूँ। विजय जेवांदिया जी, ये जैसे सरकार बहुत क्लियरली कह रही है कि ये 3 राज्यों की लड़ाई है और उनमें भी थोड़े किसानों की लड़ाई है, क्या ये सही कह रही है? क्योंकि कह रही है जैसे आपके संगठन हैं वो तो सारे मानते हैं कि ये लॉज अच्छे हैं। देखिए, ये शरद जोशी की बात कह रहे हैं, मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि ये शरद जोशी ने 1991 में वीपी सिंह जी के लिए देश की कृषि नीति ड्राफ्ट की थी। वीपी सिंह जी ने इसके तरफ ध्यान नहीं दिया, तो शरद जोशी ने 25 जनवरी 1991 को इसको प्रसिद्ध किया है और इसमें उन्होंने सरकार के इंटरवेंशन की पूरी बात को एक्सेप्ट किया है। एमएसपी से 7% से ज्यादा दाम हो गए तो हमने इम्पोर्ट करना चाहिए, और एमएसपी से 40% से कम दाम हो गए तो एक्सपोर्ट करना चाहिए, यानी एमएसपी की बात मानी ही है। शरद जोशी ने बाद में सत्ता बदली, नरसिंह राव आए तो उनके साथ में हो गए वो। हमारे यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स तो ऐसे ही करते हैं ना। आपको मालूम है कि गुलाटी जी कैसे हैं, वो सीएससीपी के चेयरमैन थे। और जेवांदिया जी, आपकी आवाज सही से आ नहीं रही है, तो आप जरा अपना जो ऑडियो है उसको थोड़ा क्लियर कर लें, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। आई जस्ट गो बैक, मैं एक बार फिर तेजवीर सिंह जी के पास वापस जाना चाहूंगी। तेजवीर सिंह जी, तो अब अब किसान क्या करेगा? अभी आपका अगला रुख क्या है? कोर्ट आप जाना नहीं चाहते तो क्या होगा? क्या अभी बीजेपी के प्रवक्ता हैं जो, उनसे पूछिए कि आपने चुनावी मैनिफेस्टो में, जी बोलिए। मैं बात जानना चाहता हूं कि आप इनसे पूछिए कि आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के लिए चीख के मोदी सरकार ने बोला था कि हम 57 रैलियों के अंदर उन्होंने ये बात रखी थी कि हम पहली मीटिंग में स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर आएंगे, और आपने बात बोली थी कि हम पहली मीटिंग में पहली कलम से कर्जा मुक्ति करेंगे। जब इन्होंने ये नहीं किया है तब ये मानते हैं कि हम एपीएमसी एक्ट को रखना चाहते हैं। बिहार के अंदर 2006 के अंदर एपीएमसी एक्ट टूट चुके थे, वहां का किसान आज बेहाल है, मक्के का उसे एमएसपी नहीं मिलता, 1850 एमएसपी है और 1100 पर बिकता है। कि अगर आप ये आश्वासन देते हैं तो आपको लिखित में देने में क्या हर्ज है कि एमएसपी गारंटी कानून रहेगा? सीधा सीधा आप बताइए ना मुझे, मेरे फसल का सुरक्षित एक निधिबद्ध तरीके से जिसे सेंट्रल सरकार निर्धारित करती है, और ये बात बोल देते हैं कि कोर्ट के लिए तो मैं सरेआम बात बोल देता हूँ, आपको अच्छी लगे बुरी लगे, कि एक जज थे जो पूर्व जज थे जो महाभियोग लाते हैं कि कोर्ट की मान्यता खतरे में है, और वो एमपी बनते हैं, बीजेपी से राज्यसभा में जाते हैं। आप कहां की बात कर रहे हो न्याय की बात करने की बात? आप खुद बताइए, इस बात का मुझे जवाब दीजिए। वो किससे एमपी बने थे? जो चीफ जस्टिस थे। आप न्याय की बात करते हैं, एमएसपी देने में हर्ज क्या है? मुझे आप स्पष्ट सा बात बता दीजिए। तो आपको कोर्ट पे विश्वास नहीं है तेजवीर सिंह जी? नहीं दे सकते हैं, एमएसपी पर ही आपने बोलना है बस। जी गोपाल अग्रवाल जी, प्लीज आंसर करिए। बोलिए। देखिए, एमएसपी हम इनको एश्योर कर रहे हैं। सरकार ने कहा है कि एमएसपी की लिखित में आश्वासन चाहिए, वो सरकार देने को तैयार है। उसके लिए कानूनों के अंतर्गत कोई बदलाव के कानून बनाने में क्या ऊपर चर्चा करने के लिए, सुन लीजिए, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार है। एमएसपी ना इन कानूनों के अंतर्गत उसका कोई मेंशन है, ना इन कानूनों से हट रही है। केंद्र सरकार इस बात के लिए इनकी बात के साथ है। किसान क्यों समझ नहीं रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा। दूसरी बात यह है कि बिहार से इन्होंने कंपेयर कर दिया। अरे बिहार में एपीएमसी मंडियां खत्म की गई है, तो बिहार की स्थिति ये, हम एपीएमसी मंडियों को खत्म नहीं कर रहे, हम उन मंडियों को चलाते हुए एक वैकल्पिक मंडी की इन कानूनों में बात कर रहे हैं। तो वो मंडियां तो चलती रहेंगी, एपीएमसी खत्म थोड़ी कर रहे हैं। 7000 मंडियां अगर देश में है, वो 7000 मंडियां चलती रहेंगी। और उसके बाद ये भी दे दिया कि कोई प्रदेश अगर प्राइवेट मंडियां नहीं चाहता तो वो उस तरह से उस मंडियों को नहीं अलाउ कर सकता है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? एपीएमसी चलती रहेंगी, एमएसपी पे हम एश्योरेंस देने को तैयार हैं।
और किसानों के ये जो कई संगठन, चेंगल रेड्डी जी से बात कर लीजिए ना, वो इतने बड़े दक्षिण के नेता है। अभी मैं नेता, वही किसान कह रहा है, आप नेताओं से क्यों बात करें, एक्सपर्ट से क्यों बात करें, किसानों से बात करिए। अब 500 यूनियन है गोपाल अग्रवाल जी, 500 किसान की यूनियन है इस पूरे देश में। ये जब आप बिल लाए, बिल को ऑर्डिनेंस में कन्वर्ट किया, ऑर्डिनेंस को लॉ बनाया, जब बिल चल रहा था, इन 500 में से आपने एक को संपर्क नहीं किया। किसान तो ये कह रहा है ना, एक्सपर्ट से क्यों बात करें जिनको आप। ये गलत बात है प्रीति जी, ये गलत बात है। जो 62वीं संसदीय समिति कृषि क्षेत्र की है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार ये बिल लाए गए और उसमें लिखा हुआ है 300 संगठन पूरे देश में, उनसे चर्चा के सर आप कह रहे हैं कि ये बिल जब फॉर्मुलेट हुआ आपने 300 संगठन से संपर्क किया, क्योंकि ये आपने खुद एडमिट किया है कि एक भी यूनियन नहीं थी जब ये बिल हुआ। अब जो आप 2010 की बात कर रहे हैं वो तो चल ही सकता है ना बहुत, वो तो फिर 2008 की भी बात हो सकती है। नहीं, ये 62वीं संसदीय समिति कृषि की, उसकी रिपोर्ट के आधार पर ये बिल बने। उस रिपोर्ट पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, वो प्रतिवेदन है कि प्राइवेट मार्केट में प्राइवेट कंपटीशन, वैकल्पिक मंडियों की आवश्यकता है, उसको सरकार अपनाए। तेजवीर सिंह जी, आप मानते हैं कि आप में से एक भी यूनियन को संपर्क में लाया गया था बिल बनाने से पहले? अरे 300 संगठनों में है ना वो लिस्ट, ये कोई भी यूनियन नहीं थी। और दूसरी बात जो यूनियनें थी, मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, जो यूनियनें थी, जो एक्सपर्ट बैठे थे, तो सरकार ये इनके तोमर जी मंत्री मान चुके हैं कि 15 पॉइंट उसके अंदर गलत हैं। जब इतने एक्सपर्ट बैठने के बाद अगर कोई यूनियन थी, वैसे तो कोई यूनियन थी ही नहीं, तो 15 पॉइंट गलत हो गए, तो कानून को वापस लेने में, रद्द करने में हर्ज क्या है? आप ये बात 15 पॉइंट पे आप सहमत हो गए कि 15 पॉइंट उसके अंदर गलत थे। तो दूसरी बात, जब लिखित में देने के लिए आप तैयार हैं, तो कानून बनाने में क्या हर्ज है? यानी कि आपकी मनसा में कहीं ना कहीं खोट है। नहीं, आपकी अगर आप लिखित में देने के लिए तैयार है तो कानून बना दीजिए। आप सिंह साहब, अग्रवाल साहब को बोलने दीजिए। बोलिए अग्रवाल जी, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो सरकार प्रोक्योर करेगी वह एमएसपी पे करेगी, इतना हम गारंटी कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर भी एमएसपी पे प्रोक्योर करेगा, ये हमारे अनुसार से वो जस्टिफाइड नहीं है, वो हो नहीं सकता। क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर को सरकार कह दे कि आप एमएसपी पे नीचे नहीं खरीद सकते, कह तो सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं खरीदने आए तो फिर उस माल का उपज का क्या होगा? आज सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, वैल्यू एडिशन चाहिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री चाहिए, प्राइवेट मंडियां चाहिए, वेयर हाउस चाहिए, उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बगैर देश कृषि क्षेत्र प्रगति नहीं कर सकता। ये कह रहे हैं कि हम छुपा रहे हैं, हम तो स्पष्ट कह रहे हैं ये जरूरत है। इनका भी पर्पज है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में जरूरत है। सर चलिए, अब तो ये आर्ग्यूमेंट ही नहीं रहता है, क्योंकि तेजवीर सिंह जी बात तय है कि गवर्नमेंट नहीं वापस ले रही है अब कानून। तो हम जब शो अभी क्लोज करना चाह रहे हैं, बस मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, तो अब क्या कब तक आप बॉर्डर्स पे बैठेंगे और इसको कैसे एस्केलेट होगा? ये आप एस्केलेट करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं एक बात कह देना चाहता हूं। हेलो जी, बोलिए। मैं एक बात कह देना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं अपने साथी से कि ये बात बोल देते हैं कि प्राइवेट के लिए है। प्राइवेट के अंदर गन्ने की खरीद होती है, प्राइवेट शुगर मिल्स, और उसका जो सरकार ने प्रावधान रख रखा है कि 14 दिन के अंदर पेमेंट होगी। मैं आपको हजारों धरने ऐसे दिखा सकता हूं जो सालों से चल रहे हैं, 2-2 साल लोगों को गन्ने की पेमेंट नहीं मिलती। बकायदा कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया कि जब तक गन्ने की पेमेंट नहीं होगी, ये हमारा एक्सपीरियंस है, हम एक्सपीरियंस पर ही बैठे हैं यहाँ पर, हमारा जो प्राइवेट करने के अंदर है। तो आप यहीं पे तेजवीर जी, ये फार्मिंग के शो बंद कर रही हूँ, पर आपसे बस ये पूछना चाह रही हूँ, ये आंदोलन कब तक चलेगा? जब तक हमारी जान रहेगी। चलिए ठीक है, हम जीतेंगे या मरेंगे, ये बात तय है। इसी पे एंड करना चाहूंगी। Again, let's just hope that the government finds a middle path, because there is a next round of talks, and which is on the 15th of January. Thank you all for joining us. Up next is Rahul Kanwal. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.